بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں سندھ کابینہ نے میئر کے اے سی کو کے ڈی اے ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے کو گورننگ باڈیز کے ممبر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے کے ایم سی میئر کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بنانے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں سندھ کابینہ نے میئر کے اے سی کو کے ڈی اے ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے کو کورننگ باڈیز کے ممبر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اقتدار انور سے۔ جی اقتدار، کابینہ کے اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ وزیر سندھ کی سربراہی میں کابینہ کا ایک اہم ترین اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہوتا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو آج سب سے پہلے ایجنڈا ہے وہ جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، سندھ کابینہ نے تقریباً اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ کابینہ نے کے ایم سی یعنی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر کو کے ڈی اے ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کا ممبر بنانے کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین ایچ ڈی اے ہوں گے وہ بھی سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کے ممبر ہوں گے۔ ساتھ ساتھ سندھ کابینہ نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ کے ایم سی کا جو میئر ہوگا وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا۔ سندھ کابینہ نے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر اور تعلقہ ہیڈ کوارٹر میں ٹاؤن میونسپل کمیٹی بنانے کی منظوری دی ہے، اور ساتھ ساتھ کمیٹی میں جو ہے وہ اراکین ٹاؤن اور اراکین یو سی کو شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ نے آج صوبے بھر کے تمام ضلعوں کے اندر یا تو یونیورسٹیاں یا پھر یونیورسٹی کا کیمپس قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ کراچی میں میٹروپولیٹن یونیورسٹی نئی یونیورسٹی قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ سندھ کابینہ کا یہ اجلاس جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ایس پی سے معاہدے کے بعد جو ہے نے اس معاہدے کی برقرار طور پر مختلف شکوار منظوری دینا تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا سندھ حکومت نے، اس کی اب تقریباً منظوری دی گئی ہے، اور اس ٹائم یہ سندھ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا اقتدار، یہ بھی بتائیے گا کہ ان ترامیم سے بلدیاتی بل میں بھی ترمیم ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ جو ترامیم آج سندھ کابینہ نے پاس کی ہے، پھر 23 تاریخ کو یعنی کہ بدھ کے روز جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے۔ کابینہ سے پاس کی گئی ترامیم کو بلدیاتی قانون میں شامل کر کے دوبارہ سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، تو آنے والا جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں ان تمام ترامیم کو بلدیاتی نئے قانون کی منظوری لی جائے گی۔ مطالبات تھے جس کے لیے جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی اور دیگر پارٹیوں سے سندھ حکومت کی مذاکرات جاری سے، اس مذاکرات کے بعد سندھ کابینہ نے آج ان تمام شکوں کی منظوری دی ہے، اور 23 تاریخ کو جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں ان سفارشات کو باقاعدہ قانون شکل دے کر ایک نیا قانون کو منظور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقتدار ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ جناح اسپتال میں ڈاکٹرز پر حملے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج جاری ہے۔ عملے نے مختلف شعبوں میں کام چھوڑ دیا ہے اور نجم الدین آڈیٹوریم کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ ڈاکٹرز نے سیکیورٹی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے احتجاج سے مریض اور ان کے لاحقین پریشان ہیں۔ گزشتہ روز سرجیکل وارڈ نمبر 3 میں برقع پہنے شخص نے تیز دھار آلے سے وار کر کے لیڈی ڈاکٹر منیشا، ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر معین کو زخمی کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی واجد، بتائیے گا۔ جی، گزشتہ رات جناح اسپتال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ڈیوٹی انجام دینے والے ڈاکٹرز پر ایک نقاب پوش شخص نے حملہ کیا، ان کو زخمی کیا۔ اس واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن جناح اسپتال میں احتجاج کر رہی ہے۔ ہم جانیں گے وائی ڈی ایس ان کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سلطان جو ہمارے ساتھ ہیں کہ اس واقعے کی تفصیلات کیا ہے اور ان کا اگلا رد عمل کیا ہے، کیا لائے عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل رات بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چھٹی کے دن بھی جو ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں وہ ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ چاہے ہاؤس آفیسر ہوں چاہے پوسٹ گریجویٹس ڈاکٹر ہوں، یہ وہ 30 گھنٹے کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ سنڈے کو جب آپ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یہ لوگ وارڈز میں ڈیوٹیاں پرفارم کرتے ہیں، ای آر میں وارڈز میں ڈیوٹیاں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، او ٹی سی میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک شخص اندر برقع پہن کے گھستا ہے اور لیڈی ڈاکٹر کے روم میں گھس کے ان کو چاقو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ریزسٹنس کرتی ہیں اور جو میل ڈاکٹرز ہیں وہ ان کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہ میل ڈاکٹر کے سینے پہ چاقو مار دیتا ہے۔ مطلب یہ سیکورٹی لیپس ہے، سیکورٹی کا فیلئر ہے،
ऐसा इन्वायरमेंट में मुझे बताएं कि कौन पेशेंट केयर करेगा, कौन पेशेंट केयर करेगा। मुझे ये बताएं कि 30 घंटे ड्यूटी करने वाला फर्द जब उनको चाकू से मारा जाएगा, जब उनको हरास किया जाएगा, वो यहाँ कैसे काम करेंगे? उनका ज़हनी सुकून ही नहीं होगा। तो हमने सिक्योरिटी बिल एक अप्रूव करवाया था मुर्तज़ा वहाब साहब के जरिए कोविड एक्ट के तहत, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? जिसमें कहा गया था कि 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ प्राइवेट गार्ड्स रखे हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप इनसे सिर्फ डेटा ले लें कि एक शिफ्ट में कितने गार्ड्स हैं और कितने हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके पीछे भी करप्शन है। जब तक आप इस करप्शन जो है, इस करप्शन तमाम मसाइल जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के यहाँ मौजूद हैं, उसके पीछे करप्शन है। जब तक आप करप्शन खत्म नहीं करेंगे, ये मसाइल यूं ही रहेंगे। ये थे YDA सिंध के चेयरमैन डॉक्टर उमर सुल्तान, जो वाकया बता रहे थे, तफसील बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि सिक्योरिटी लैब्स है, गार्ड्स बताए तो जाते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी के मौके पर वो मौजूद नहीं है। करने का शहर के दीगर अजला की तरह बल्दिया कुरंगी में भी माली बहरान है, जिसका शिकार आवाम के साथ बल्दियाती मुलाजमीन भी हैं। इस माली बहरान को हल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी जावेद कलहोट ने मौसर हिकमत अमली तैयार करने का दावा किया है। DMC कुरंगी के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, इनसे मजीद तफला जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर ज़िला बल्दियात की तो ज़िला बल्दियात का मामला ये है कि यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से जो माहाना शेयर है, ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स उसे कहते हैं, उसमें इजाफ़ा नहीं किया जा सका है, और जबकि जो तनख्वाहों में इजाफ़ा है और दीगर अखराजात हैं, POL चार्जेज़ हैं, वो सब बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से जो ज़िला बल्दियात हैं वो इस काबिल नहीं रही हैं कि बल्दियाती ख़िदमात प्रॉपर तरीके से जो है आवाम को डिलीवर कर सकें। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कलवर साहब, इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, कितना शॉर्टफॉल है आपका और नीड आपकी जो है वो माहाना बुनियाद पर क्या है और किस तरह जो है वो आप मामला चला रहे हैं? हमारी जो OZT शेयर है जो मंथली हमें आता है वो अराउंड 17 करोड़ 30 लाख रुपए। वो हमारी सैलरीज़ की मद में जो हमारे पैसे जा रहे हैं वो हैं अराउंड 18.5 करोड़ रुपए, और ऑन सोर्स जो रिकवरी है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है। तो ओवरऑल हमारे पास जो है लाइबिलिटीज़ हैं अराउंड हमारी 10 करोड़ की, जो हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करनी है जिन्होंने पहले काम किए हुए। जब POL का मैं देखें ना, POL पहले जो था हमारा कंजम्पशन थी, मैंने कोशिश की है उसको कम किया है, लेकिन आपको पता है रेट्स जो बढ़े हैं उसमें हमारे जो है ना फाइनेंशियल इशू, उसमें फ़र्क पड़ेगा। जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, मेरा फोकस जो है ना वो ऑन सोर्स रिकवरी पे है, जिसमें हमारी जो मेन हेड है वो है ट्रेड एंड प्रोफेशनल टैक्स, जिसमें मेरी काटी वालों से मीटिंग हुई है, जो कराची एसोसिएशन है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की। उनके अराउंड हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो 4,500 हैं। जो हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन हो रही है जो रजिस्टर्ड है हमारे पास वो हैं 2,000। तो अराउंड अगर एरियर्स के साथ अगर हम उनसे रिकवरी करें, मेरी मीटिंग्स हुई है, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम आपको पेमेंट करेंगे। वो अप्रॉक्सीमेटली अगर जो उनसे फ़ौरन आनी चाहिए वो 50 करोड़ रुपए आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर दे रहे थे जावेद कलवर, कह रहे थे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से ट्रेड लाइसेंस की मद में रिकवरी की जाए तो खुशहाली आ सकती। बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हल्का बंदियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी और दीगर ने अदालत से इस्तदा की कि हल्का बंदियाँ खिलाफ कानून है, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, हल्का बंदियाँ कालादम और नई हल्का बंदियों का हुक्म दिया जाए। इसी से मुतल्लिक मजीद तफला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और तमाम फ्रीकैन को 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं के वकील ने अदालत को ये बताया कि सिंध हुकूमत ने नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदियाँ की हैं उनमें कवायद और जवाबित को बुरुए कार नहीं लाया गया और तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा नहीं किया गया। जिस हल्के की नई हल्का बंदी की जाती है वहाँ पर अवामी समाअत की जाती है और एतराज़ात सुने जाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो अमल है इसको अडॉप्ट नहीं किया गया और जब अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात आए तो उसके बाद अवामी हेयरिंग्स रखी गई, जो कि खिलाफ कानून एक प्रोसेस है। लिहाजा जो सिंध हुकूमत की जानिब से नई हल्का बंदियाँ की गई हैं और उसमें जो नकाइस छोड़े गए हैं, इस बुनियाद पर
नई हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके साथ ही सिंध हुकूमत को यह पाबंद किया जाए कि जो कानून के तकाजे हैं और जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं नई हल्का बंदियों से मुतालिक, उनको सुना जाए और तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करने के बाद ही नई हल्का बंदियाँ की जाएँ और जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में ये चैलेंज की गई थी एक आईनी दरख्वास्त के तहत, जिस पर आज इस अदालत ने समाअत की है और फ्रीकैन को 4 हफ्तों के लिए नोटिस जारी करते हुए। बिलाल अहमद, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट ने अमजद सिराज मेमन की बतौर वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी तैनाती का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को कानून के मुताबिक नया वाइस चांसलर तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमजद सिराज मेमन की तैनाती से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अमजद सिराज मेमन की तैनाती जो कि चैलेंज की गई थी उस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है और अमजद सिराज मेमन की बतौर वाइस चांसलर तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए वज़ीर आला सिंध को यह हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक नया वाइस चांसलर तैनात किया जाए। अदालत ने यह करार दिया है कि शॉर्ट लिस्ट शुदा जो समरी है वो वज़ीर आला सिंध को अरसाल की जाए और वज़ीर आला सिंध उस शॉर्ट शुदा लिस्ट में से इंटरव्यूज करने के बाद नए वीसी का कानून के मुताबिक तकर्रुर करे। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। गैस बहरान का शिकार मुल्क के लिए अच्छी खबर है कि सिंध में लतीफ ब्लॉक मोहर 1 में हाइड्रोकार्बन की नई दरियाफ्त कामयाबी मिली है। इसमें मोहर 1 कुएं से 14.3 मिलियन मकफ़ित गैस के ज़खायर मिले हैं। आपको बता रहे हैं गैस बहरान का शिकार है और मुल्क में अच्छी खबर है कि सिंध में लतीफ ब्लॉक मोहर 1 में हाइड्रोकार्बन की नई दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। मोहर 1 कुएं से 14.3 मिलियन मकफ़ित गैस के ज़खायर मिले हैं। आपको बता रहे हैं सिंध में गैस की नई दरियाफ्त हुई है। लतीफ ब्लॉक मोहर 1 में हाइड्रोकार्बन की नई दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। मोहर 1 कुएं से 14.3 मिलियन मकफ़ित गैस के ज़खायर मिले हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा नए गैस के ज़खायर से शोबा तवानाई को कितनी मदद मिलेगी? जी, देखा जाए पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और सिंध में गैस की नई एक और दरियाफ्त मिल गई है और जो PPL है उसने सिंध में लतीफ ब्लॉक मोहर 1 कुएं में हाइड्रोकार्बन की नई दरियाफ्त में कामयाबी मिली है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने आगाह कर दिया। ये भी बताया लतीफ ब्लॉक में जो शराकत दारी है उसके साथ मिलकर तेजी से काम किया गया, जिसमें 12,1111 जो है फिट गहराई में दरियाफ्त मिली है, जिसमें पाकिस्तान को जो है 14.3 मिलियन मकफ़िट गैस जो है यौमिया मिलेगी और इससे जो दरियाफ्त है उससे जो मुकामी वसाइल से जो मुल्क की तवानाई को सपोर्ट मिलेगा और सिंध में गैस की नई दरियाफ्त से गैस के ज़खायर में भी इजाफा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए।